بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوم دفاع پاکستان ہے، اس پاکستان کے دفاع کا دن جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تحریک کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح جیسی بڑی شخصیت نے کی تھی، جس کو حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ اور ہمیں جب پاکستان بن گیا تو پھر ہمیں ایک ساتھی دشمن بھی مل گیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، جب کشمیر کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا تھا۔ ہمارے بہت سارے ایسے حصے جن پر پاکستان کا حق تھا، پاکستانیوں کا حق تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہوتے، ان کو حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اور جب ہم کشمیر کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو وہاں تو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہاں پر جو کچھ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی طویل ترین جدوجہد ہے۔ آج جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، تو یقینی طور پر پاکستان کا جو نیا سیاسی نقشہ ظاہر کیا گیا ہے، اس میں کشمیر ہمارا ہے۔ اور کشمیر کے اوپر پاکستانیوں نے، ہم مسلمانوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہماری مسلح افواج نے، ہمارے بیٹوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور جب بھی کشمیر کی بات ہوگی، پاکستانی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ یوم دفاع پاکستان 1965 کی جنگ کا دن، جب رات کے اندھیرے میں ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ کیوں حملہ کر دیا تھا؟ کہ ہم کشمیر لینا چاہتے تھے، ہم کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، ہم ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے تھے، ہم ان کی آواز بننا چاہتے تھے، ہم جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے آگے ڈھال بننا چاہتے تھے، ہم دنیا کے آگے مسئلہ کشمیر کو رکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر کشمیر کے لیے ہم پہلے بھی لڑے، ماضی میں بھی لڑے، آئندہ بھی لڑیں گے، اس کے لیے جانوں کی قربانیاں دی، اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ دیتے رہیں گے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قربانیاں تو ہم دیں گے، ہماری مسلح افواج دیں گی، ہمارے جوان دیں گے، لڑیں گے بھی۔ پہلے بھی لڑے تھے جب 6 ستمبر آج کے دن صبح 3 بجے رات کے اندھیرے میں 2:30-3 بجے دشمن نے اپنی فوج ہمارے ادھر واگا بارڈر پر لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے میں ہمارا جو مال روڈ پہ جم خانہ ہے وہاں پر پہنچ جائیں گے اور لال بہادر شاستری کو وہاں پر جا کر سلوٹ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم یہاں پر کوکٹیل پارٹی کر رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ آج یہ جو وقت ہے، اس وقت تک ہم نے دشمن کو اس کی حیثیت یاد کروا دی تھی۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والے مکار دشمن، تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم ہمارے جذبوں کو شکست دے سکو۔ میں بات کروں گا یوم دفاع کے حوالے سے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بچے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کتنا قیمتی ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے دفاع کے لیے کس جذبے سے کہ جب صرف ہمارے 150 سپاہیوں نے 12 گھنٹے تک 1500 فوج کو روکے رکھا۔ یہ ہمارے میجر عزیز بھٹی تھے جو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ برکی میں وہاں پر کمانڈ کر رہے تھے، کمپنی کمانڈر تھے۔ 5 دن تک وہاں پر مقابلہ کرتے رہے اور 12 ستمبر کو پھر جو ٹینک کا گولہ لگا وہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے۔ میں یہ ابھی تھوڑا سا پڑے سیالکوٹ کی طرف، چونڈا کی طرف چلا جاؤں تو وہاں پر ہماری جو لڑائی ہوئی تھی اور ہم نے بھارتی ٹینکوں کو قبرستان بنا دیا تھا، تو ایسے ہی نہیں بنا دیا تھا، جوش اور جذبے کے ساتھ بنایا تھا۔ ہمارے جوان، کبھی دیکھا آپ نے اس طرح اپنے بدن کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ بم بن کر لیٹ گئے تھے اور ایسی پسپائی ہوئی تھی وہاں پر۔ یہ تمام واقعات میں نے یاد کرنے ہیں، آگے کی بات کرنی ہے، اس جذبے کی بات کرنی ہے جس جذبے کے ساتھ لاہوریوں نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ مجھے آج جذبہ وہ پھر واپس چاہیے۔ کس طرح واپس آئے گا؟ کس طرح ہم دوبارہ ایک قوم بنیں گے؟ ہم ہیں اب بھی، مزید چاہیے، اس پر بات کریں گے۔
بہت ہی مشکور ہوں. کرنل فاروق میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کرنل صاحب 65 کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا جذباتی بندہ ہو جاتا ہے, تو یوم دفاع پاکستان بھی ہے, تو اس پر بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے دعوت دی. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ بہت مشکور ہوں کرنل اسد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کرنل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر موجود ہیں اور واگا بارڈر پر ہمارے ونگ کمانڈر کے طور پہ ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے. کرنل اکبر بٹ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کرنل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جب ہم جوش اور جذبے کی بات کرتے ہیں تو جوش اور جذبہ ہمارے نغموں سے بھی پیدا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب ہم 65 کی بات کرتے ہیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے جو ترانے تھے آج تک جو ہیں ہم ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو سائرہ طاہر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سائرہ بہت بہت شکریہ. اور جب ہم جنگی ترانوں کی بات کرتے ہیں, ملی نغموں کی بات کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ اتنا خوبصورت پڑھتی ہیں, تو میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کا بھی میں تعارف کرنل سائرہ کے طور پہ کروا دوں. تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا. پاکستان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہماری جان بھی حاضر ہے, اور ہماری آواز سے اور ان ملی نغموں سے جس طرح ہماری پاک فوج کو جوش ملا ہے, تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جذبہ اور یہ جوش ہمیشہ قائم رہے. جی, جذبے اور جوش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب تک یہ ہمارے کرنل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہوتی ہے پوری کی پوری, اور پھر وہ فوجیں لڑتی ہیں. اور آج بھی ماشاءاللہ اگر بات ہوگی بھارت سے مقابلے کی, دشمن سے مقابلے کی, تو کرنل صاحب واگا بارڈر پہ آپ تعینات بھی رہے, آپ نے دیکھا بھی جوش اور جذبہ. آج یوم دفاع کے حوالے سے کچھ پرانی یادیں بھی تازہ کریں گے, کچھ نئی باتیں بھی کریں گے. کیسا کیا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور آپ کا, کہ آپ نے ہر سال کی طرح جو ہے 6 سپٹمبر میں ایک جو کہ دفاع کیا ہماری فوج نے, ہماری قوم نے مل کے اپنے ملک کا, اس کو آپ منا رہے ہیں, اور اپنی ینگ جنریشن کو بیسیکلی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم میں کتنا جوش ہے, ہم میں کتنا یقین ہے, اور ہم میں کتنا اتحاد ہے کہ ہم اپنے سے کئی گنا جو بڑا دشمن ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اگر ہم اپنے آپ کو افرادی لحاظ سے اور ویپنری کے لحاظ سے اور گولہ بارود کے لحاظ سے اگر ہم کمپیئر کریں, تو ہمارا جو دشمن ہے اس سے ہم تعداد میں اور ان سارے چیزوں میں کم ہیں. لیکن الحمدللہ جب دشمن نے 6 سپٹمبر کو صبح, جیسے آپ نے اپنے اس میں انٹرو میں بتایا, کہ اس نے جب انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا کسی بھی صورت میں کسی بھی لحاظ سے دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے اس وقت اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دشمن اس طرح اتنی جو ہے وہ اتنی جرت کرے گا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے گا. اور جیسے انہوں نے کہا جی کہ ہم جا کے تو ہم جم خانہ میں ناشتہ کریں گے, تو ان کے تو جو خواب تھا, جو ان کی یہ ڈیزائر تھی, جو ان کی یہ خوش فہمی تھی, الحمدللہ ہماری قوم نے اور ہماری فوج نے دونوں نے مل کے, آپ دیکھیں 65 میں کتنا جذبہ تھا ہماری قوم. جیسے آپ نے میڈم کا بتایا کہ ترانے اور ملکہ نور جہاں کے ترانے, اور لوگوں کو, اور لوگ فوج کے ساتھ جوک در جوک, اور BRB نہر وہ کراس نہیں کر سکے. ہماری پہلی جو لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے اس میں پاکستان رینجرز جو ہے وہ ہوتی ہے. اس وقت پوری رینجر ایک تھی, ابھی پاکستان رینجر پنجاب اور پاکستان رینجر سندھ ہے. میں واگا بارڈر پہ ونگ کمانڈر رہا ہوں, بالکل آئی بال ٹو آئی بال. ہم 1.25 سال 2 سال 1.5 سال تقریباً میں وہاں پہ ونگ کمانڈر رہا ہوں. تو ہمارا پروفیشنلزم جو ہمارے سولجرز کا ہے اور جو سامنے والے سولجرز کا ہے اس میں بہت فرق ہے. آپ دیکھیں 6 سپٹمبر کو رات کے اندھیرے میں, اچھا ویسے یہ جنگ کی بات تو ایک علیحدہ, اس کو تو خیر جوش اور جذبہ ویسے ہی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. میں تو واگا بارڈر پہ جب دیکھتا ہوں, وہاں پر پریڈ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو جو ہمارے رینجرز کے جوان ہیں جس طرح, وہ تو بیچارے ابھی پدے لاگے دینے میں ویسے بالکل ہی ایگزیکٹلی سارے ہیں. آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ پاؤں زمین پر مارتے ہیں,
जो उनका मिलिट्री बेरिंग हम उसको कहते हैं, बेसिकली जो बॉडी है उनकी, उनके जो कद काट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जोश है। सबसे बड़ी बात अब वाघा बॉर्डर में देखें आप, गंडा सिंह बॉर्डर पे, गंडा सिंह के भी यही सूरत हाल है। हाँ जी, यही सूरत हाल है। गंडा सिंह पे जरा ज्यादा क्लोज होते हैं सारे देखते हुए, तो वो बड़ा एक मजेदार एक फीलिंग आती है उसके साथ। जी जी बिल्कुल। आप देखें 6 सितंबर को इंडिया ने लाहौर वाघा सेक्टर में, बरकी सेक्टर में और कसूर में साइमल्टेनियसली उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। और फिर आप ये देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर से BRB का जो डिस्टेंस है, इट इज एट सर्टेन प्लेसेस ये डिफर करता है। कई जगह पे तकरीबन ये 6-7 किलोमीटर है, कई जगहों पे 8-9 किलोमीटर है, कई जगह पे इससे भी कम है। तो BRB एक फौज जो पूरी तैयारी के साथ, आप देखें जब एक फौज हमला करती है तो उसका महीनों पहले प्लानिंग करती है, उसकी हर चीज, सप्लाई लाइन, हमला, फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सारी कॉन्टिजेंसी वो प्लान करती है। और वो 5-6 किलोमीटर का इलाका जो है वो उनको क्लियर रन नहीं मिला और उनको हमारी फौज ने रोका, और हमारी मुख्तसर फौज ने रोका। जिस तरह आपने कहा कि मेजर अजीज भट्टी चंद जवानों के साथ जो है वो बरकी वाले महाज पे उन्होंने जो है कई गुना बड़ी जो फौज है उसको रोका, क्योंकि आप जंग में डिसेप्शन भी होती है। आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं कि आप अगर तादाद में थोड़े हों तो लगना ऐसा चाहिए कि आप तादाद में बड़े हैं। तो ये जो वैसे कन्ना साहब एक चीज तो वैसे साबित हो गई, एक असला भी जरूरी है मैं दिफा के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो जरूरी है वो आप में जिगरा होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए, तो फिर आप लड़ते हैं। और माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी फौज ने साबित किया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जज्बे के बगैर तो कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकता। और मैं आपसे थोड़ा सा इस पे भी आपको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप 65 की वॉर से पहले आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन किस तरह की थी जी। सदारती इलेक्शन हो चुके थे, बड़ी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, मोहतरमा फातिमा जना उसके अंदर लिहाजा वो हार गई थी, और प्रेसिडेंट अयूब जो है ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, और बड़ा एक इस तरह का सिचुएशन थी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब आप पोलराइजेशन अरूज पे थी, उसको पॉलिटिकल जो थी, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि वो कितने साल हुए थे, 18 साल के अंदर, 18 साल के अंदर आप तसव्वुर कीजिए उस वक्त का कि जब 1947 में आप आज़ाद हुए तो आपके पास पेपर्स को जोड़ने के लिए क्लिप या पिन तक नहीं होते थे, और वो कांटे ले लेके आप उनको जोड़ते थे। दिस वाज द नेशन एक्चुअली विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर ये कायदे आज़म की सारी एफर्ट्स शामिल थी। फिर आपने अगले 18 साल के अंदर जो ट्रैवल किया, आपको बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स के ऊपर, हुकूमती सिस्टम के ऊपर बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन एक जो ग्रेजुअल प्रोसेस था आपकी तरक्की का, आपके मुल्क को आगे लेके चलने का, और फिर अपनी मुसल्लह अफवाज को, चाहे आप एयरफोर्स की बात करते हैं, नेवी की, आर्मी की बात करते हैं, तीनों को आप जो साथ लेके चले, दैट वाज आई से ट्रमेंडस। चाहे जैसा भी है उस वक्त की जो अगर मैं लीडरशिप की पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, उनसे बहुत सारे इख्तलाफ आपका हो सकते हैं, मुझे हो सकते हैं, लेकिन जो उनका फोकस था, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, मुसल्लह अफवाज को तैयार करना। वाई? बिकॉज इंडिया ने तो किसी सूरत में आपको एक्सेप्ट तो एक लिहाज से किया नहीं था। वी हैड लॉट मनी प्रॉब्लम्स बेसिकली, इवन अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान आपको डिस्टर्ब करा था, इंडिया के साथ जो सिलसिला चल रहा था, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन थी, जो आज की सिचुएशन है, बिल्कुल आप समझ, उसकी शुरुआत वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो उन्होंने उसको लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप वहाँ पे सदर ख़त्म कर देंगे, वो गवर्नर आ जाएगा, गवर्नर जो है वो नई दिल्ली से अपॉइंट होगा, वज़ीर आज़म का उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करेगा। तो एक अनरेस्टलेस ओवरऑल आप इस रीजन के अंदर देखते थे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर देखते थे। अच्छा, उससे पहले 1962 के अंदर जिस तरीके से लद्दाख के अंदर इंडिया को शिकस्त हुई थी चाइना के हाथों, एक्चुअली दैट वाज द फ्रैंकली स्पीकिंग इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमने लूज की। इट वाज दैट टाइम वी वुड हैव रियली स्टक इंडिया, बजाय इसके कि हम 1965 के अंदर जाते। बट स्टिल आई वुड से कि सारे जब चीज़ों को आप देखते हैं, इवेंट्स को आप जिस तरीके से देखते हैं, इंडिया जिस तरीके से आपको डिस्टर्ब एक लिहाज से कर रहा था, रन ऑफ कच्छ की इससे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो बात हो रही थी, तो शुरुआत तो इंडिया ने एक लिहाज से कर दी थी, पानियों के आप ऊपर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था। देयर वाज नो वे आउट, बट सर्टनली यू हैड टू फेस इंडिया, एंड दैट वाज द टाइम कि जब वो, जिस तरह आपने खुद इंट्रोडक्शन के अंदर बड़ा इलेबोरेटली आपने सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया कि भी रात को 3 बजे आप देखें ना, 6 सितंबर की बात है ना, आप
कुछ घंटे पीछे चले जाएं तो 3 सितंबर मतलब 3 बजे का रात का टाइम है, वी आर वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन आवर होम्स या सो रहे हैं। और इसी तरीके से जो आपकी फौज अगर ख्याल भी यही था कि ये सारे सो रहे होंगे हमारे, इवन मोर्चों में वो कह रहे हैं कि बिल्कुल रिलैक्स होंगे तो रात के 3 बजे, बिल्कुल ऐसा ही है। अमूमी तौर पे भी यही होता है कि रात 9, 10, 11, 12 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, वो खैर थोड़ा सादा दिन था, उन्होंने बॉर्डर पोस्ट पर लेकिन उसके बावजूद हमारे जवान जाग रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर लेकिन ये जरूर आप समझ लें कि जिस तरीके से आपकी एक प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट होती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर आपके अपने मुसल्लह अफवाज की, उनकी जो मूवमेंट आप जिस तरीके से प्लान करते हैं, वो तो ऐसा इसलिए नहीं था बिकॉज देयर वाज नो वे कि जी आप ये कहें कि वी आर गोइंग बेसिकली फॉर द फुल फ्लेज वार। नो दैट वाज द टाइम जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इंडिया का जनरल चौधरी की बात करते हैं, जिनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो उनके डिजाइन या प्लान्स थे कि जी हम सरप्राइज अचीव करेंगे, और सरप्राइज अचीव करके दे हैड द प्लान्स कि जी ब्रेकफास्ट से जो लंच है वो तो बेसिकली लाहौर जिमखाना के अंदर बैठ के करेंगे। एंड शेम ऑन देम, लुक एट देम, व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली। मतलब आप ये कहें कि अगर हम उनकी मकारियत की बात करते हैं, उनके कनिंगपन की बात करते हैं, वो तो सारी चीजें इसी तरीके से साफ जाहिर है। और फिर एक और चीज देखें, आई डोंट गो इनटू द फिगर वर्क जी फोर्स रेशियो क्या था, बट रफली इट वाज 1-3 का था, यानी कि अगर हम एक थे तो वो 3 एक लिहाज से आते थे, चाहे एयरफोर्स नेवी की बात करें या आर्मी के एक लिहाज से बात करें। और अगर इस कुव्वत के साथ आपके ऊपर ओके दुश्मन है, आपके ऊपर हमलावर होता है, और फिर जिस तरह आपके सोल्जर्स, आपके जो JCOs और फिर आपके ऑफिसर्स, मतलब वो खड़े हुए सीसा प्लाई दीवार की तरह। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का आपने तस्करा किया, सीने पे टैंक का पूरा गोला खाया उन्होंने कमवट में, जो भी आप इसको कह लें, ये वही लोग होते हैं जो उस तरह अपने वतन के साथ, अपने वतन की मट्टी के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। को ना कन साहब, शहादत की इस फीलिंग को मैं समझता हूँ कि एक माँ महसूस कर सकती है जिसका बेटा है, एक बीवी महसूस कर सकती है जिसका शोहर जो पहले उससे दूर है और फिर शहादत की खबर आई थी। फिर उसी पर तो हमारा जो एक तराना बड़ा के पुत्र हटाते नहीं दिखते, तो वो बना। मैं आपकी तरफ आना है, लेकिन जज्बाती कर दिया आपने राजा साहब की बात करके। थोड़ा सा अगर सायरा हम थोड़ा सा इस वक्त अगर आप हमें थोड़ा सा सुना सकें, पुत्र हटाते नहीं दिखते। तने पागलिया मावा दे जिना मावा दे जाए ने तन पागल पेड़ बनावा दे जिना गोदिया दे खड़ाए ने मारने माना वाले दे नहीं इस बितनु सार कोड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनी बिच बाजार कोड़े देने मेरे दाता दी पुत्र हटाते नहीं विकदे। नाज़रीन, आज 6 सितंबर की याद, उस जंग की याद जिसमें हमने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़े मैं कहता हूं कि दिलो जान से लड़े, और एक ऐसी लड़ाई मैं उसका जिक्र बार बार करना चाहता हूं जो सियालकोट के करीब चिविंडा में 600 टैंकों के साथ हमारे दुश्मन ने हमला कर दिया, 600 टैंकों के साथ। और उसका मुकाबला किस तरह किया गया, यहाँ पर कर्नल साहब मौजूद हैं, कर्नल फरूख साहब मौजूद हैं, कर्नल असद मौजूद हैं, कर्नल भट्ट मौजूद हैं। कमाल नहीं कर दिया जी, अपने सोचा भी नहीं जा सकता कि हमारे जवान, हमारे लोग, हमारे भाई दुश्मन का मुकाबला करने के लिए वो देखें कि पूरा टैंक आ रहा है, अपने जिस्म के साथ सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत में बम बांधें, बारूद बांधें, उसके आगे लेट जाएं, पूरे का पूरा टैंक उड़ा के रख दें। तो ये जज्बा तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जज्बा है कि तारीख में मुझे नहीं नजर आता कि शायद कोई कौम इस तरह लड़ी होगी। हकीकत ये है कि मैं 6 सितंबर को जब ये ऐलान हो रहा था जंग का,
मैं कॉलेज में था, हम लोग, मैं गया हुआ था अपने घर में, छुट्टी पे गया हुआ था, अपना छुट्टी कहता हूँ, विलेज में। जब हम उठे तो उस वक्त अयूब की स्पीच आ रही थी रेडियो पर, और वो अयूब खान साहब की स्पीच, फिर मैं कहूंगा सियासी इख्तिलाफात जैसे कहने साहब कह रहे थे अपनी जगह पर, और जो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए उठो, बिल्कुल कमाल कर और दिया था। उन किस कौम को ललकारा है, उसका वर्ड ये था, इनको मालूम हो जाएगा किस कौम को ललकारा है। मैं वहां से जज्बे की बात शुरू करता हूँ। मैं गया हूँ तो हमारे वो डेरे पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें से कोई भी फौजी था, कोई भी ना फौजी था। मैं कभी गया था फौज में, बुजुर्ग बैठे थे सारे सारे कहते अच्छा अब किया हमला, जरा दिखा देंगे इंडिया को। एतमाद ये था अपनी कौम का, सही, कि वो लोग जिन्होंने कभी फौज देखी नहीं है, उनको भी पता था कि अब हिंदुस्तान का हम मजा चखाएंगे। अपनी एतमाद था अपने लोगों पर, अपनी अफवाज पर। खैर हम भी भागे, हमारा दिल चाहता था कि फौरन हम किसी ना किसी तरीके, अगरचे हम उसको जैन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम भागते थे कि किस तरीके हम भी बॉर्डर पर पहुंचे। और उस पर यह बात जो मलका तरन्नुम के जज्बात वाली बात है, हकीकत यह है कि हम वो नस्ल है जिन्होंने सही टच लिया उसका, हाँ, सही मजा लिया उसका, सही और जिस तरीके जिनके सही जज्बात आए हैं कि फौरन जाके भर्ती हो जाओ, जितने भी आए जैसे भी है। एनीवे, अब क्या होता है, एक वो वक्त आज से कितने साल पहले और एक आज ये वक्त है। सिर्फ एक चीज मुझे कांस्टेंट नजर आती है अपने कौम में, आपस में लड़ते रहे मरते रहे कुछ भी हो, पाकिस्तान इश्क है, आपस में जो मर्जी करें, जब थ्रेट पाकिस्तान को पड़ता है कोई और चीज सामने नहीं आती। हमारे लोग जो हैं किसी भी पार्टी से हों, कुछ भी उनका हो, सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रह जाते हैं, सियासी छोड़ के बाकी इख्तिलाफात भी। 65 का तो एक नमूना था, यानी उन दिनों चोरियां खत्म, डाके खत्म, जुर्म खत्म। अरे यार वो भी शामिल थे इसमें, पाकिस्तान तो उनका भी है, पाकिस्तान बात समझे ना। ये तो मैंने वो चीजें जो मैंने देखी हैं और उस माहौल में देखी जहां पे कोई फौजी नहीं उठता था। और फिर उसके बाद इसकी जरा बैकग्राउंड देखें, हिंदुस्तान ने हमें नहीं तस्लीम किया था और उनका ख्याल था कि हम इतना चल ही नहीं सकते। हिंदुस्तान बेशतर सामान्य की हालत में थे हम। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर उस वक्त हमला कर लिया जिस वक्त उन्हें पता था कि लाखों लाशें हमारे बेले जो अटे पड़े थे, लाशों से दरिया जो सुर्ख हो चुके थे खून से, और हमारे लाखों लोग बेघर होकर आ रहे थे, हमें वो प्रॉब्लम भी डील करना था। उस वक्त हमला हुआ, लेकिन उस वक्त भी जो अब हमारे कश्मीर आजाद कश्मीर है, उस वक्त भी हमारे मुजाहिदीन ने उस वक्त भी ये इंडिया से छीन लिया। बाकी रह गई बात, ये हमारा वजह बनी, ये अनफिनिश्ड एजेंडा पार्टीशन का, और हमारी वजह ये बनी कश्मीर के इंडिया के साथ। और इसके लिए फिर नेक्स्ट वार आपकी आती है ऑर्गेनाइज्ड वार, वो 65 वार आती है। 1948 की जंग थी, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं कह सकते, वो उस तरीके से मैंने किया ना, लोगों के जज्बात हमारी सामानी थी, सब कुछ था। उस वक्त भी हिंदुस्तान ने ट्राई किया और आदाब ले लिया। ठीक है जी, हमारे जज्बात उस वक्त भी ये थे। ये किस नबी की कौम है, नबी आखिर ज़मान की। जब वो उनका वसाल हुआ तो घर में कोई अंबार नहीं लगे हुए थे, ना दौलत के ना खुराक के, लेकिन दीवार के साथ 9 तलवारें लटकी हुई थी। और हमारे लिए हुक्म है, वअद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, और तैयार रहो उनके लिए जहां तक हो सकता है अपने घोड़ों के साथ, अपने सामान के साथ, ताकि रोब रहे उन लोगों पर जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन है, और वो जिनको के तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है। ये कौम जो हमारी है, ये इसको समझे ना समझे, जब भी वक्त आता है इम्तिहान का, ये फिर वही कौम वही उम्मत खड़ी होती है। तो उसकी जंग 65 वॉर की अगर आप देखें, एनालिसिस करें,
हमारी दूसरी जंगों से जो कौम के टेस्ट आए हैं उनसे ये सिंपल जंग थी, अच्छा सिंपल थी, ये सिंपल थी, लेकिन ये बहुत बड़ा टेस्ट था। ये टेस्ट था जिसने हमें एतमाद हमारे को आसमान तक ले गया, हमारे यकजहती को एक ऐसा बीज बो गया जो आज हजारों मुश्किलात के बावजूद, दुश्मन के हमले, हर किस्म के हमलों के बावजूद भी आज कायम है। मैं नहीं किसी को कहता ये गद्दार चदार न रो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं किसी भी सोच में, लेकिन हमारी कौम पाकिस्तान से करती है। अब उसमें ये था, मैं इसलिए कह रहा हूं सिंपल, ठीक है, वो इसलिए कि पता था कि उनके पास ये हथियार हैं, इतने लोग हैं, इतने हमलावर हैं, वो टैंक है, हमारे पास भी वही हथियार, उसी ने टैंक ये थे। तो ये एक कन्वेंशनल वार से कहते हैं। पाकिस्तान ने उससे पहले जो 48 की जंग लड़ी थी वो ज्यादा मुश्किल थी, फिर उसके बाद 71 की जो जंग लड़ी वो उससे भी मुश्किल थी। वो इस वजह से भी मुश्किल थी कि हमारे बंगाली भाइयों के दिलों में जहर भर दिया उसके लिए तो मैं सिर्फ कहता हूं कि जिस बच्चे को, जिस आदमी को शक हो वो आज वायरल है। आप देखें कि जनरल मानिक शाह जो उस वक्त का इंडियन कमांडर इन चीफ था, वो क्या कहता है, वो कहता है जी मैं 1:15 की रेशो से वहां हमलावर हुआ था, एक सिपाही के बदले 15 लेके गया था, 1:15 की रेशो से, उसमें जहाज हमारे पास टोटल 14 थे और वो 200 जहाज थे, उनके जंगी जहाज की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि कोई फौज दुनिया में लड़ ही नहीं सकती इन हालात में जिसमें पाकिस्तान आर्मी लड़ रही थी। बहुत मुश्किल हालात। और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है, किताब लिखी है मैंने इसके ऊपर। अब बात यह है कि उसके ऊपर क्या हुआ कि अब आप रिकॉर्ड देखें, अब तो इंसान को कोई भी ज़हन में आता है, मैं खास तौर पर नौजवानों को कहता हूं कि कोई भी तुम्हें बदजन करने लगता है, पहले निकाल के गूगल से देख लिया करो, बहुत कुछ ठीक नजर आता है। वहां जाके देखें, इंडियन के 71 की जंग में 15,000 कैजुअल्टीज है, मरे और जो जख्मी हुए वो 15,000 हैं। आपके इस पाकिस्तान में 8,000 शहीद हुए थे। उन हालात में भी 8,000 ने 15,000 को डाउन किया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं ना। लेकिन और कौम का जहां तक जज्बा है, हाँ ये मैं बता रहा हूं कि यहां पर कौम में वो जज्बा पैदा नहीं किया गया था, वो सही इंफॉर्मेशन नहीं थी, कहीं पर फॉल्ट आते हैं, ये लंबी और बात है, व्हाटएवर हैपेंड उसके बहुत सारी रीजन थी। लेकिन मैं ये समझता हूं उस वक्त भी शहीद होने वालों के शहादत में खून की गर्मी में कमी नहीं थी। मैं कह रहा हूं आपको कि 8,000 शहीद हो गया, जहां मालूम था नहीं निकल सकते। अब ये 15,000 कर दिया। लेकिन अब मैं एक और चीज आ गई, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। असल में हम आगे बढ़ाए अब ना बहुत, अब हो गई जंगों की नौयत बदल गई, लेकिन इसके बावजूद फौज की अहमियत से इंकार नहीं सब किया जा सकता। ठीक है, हमने सोशल मीडिया पर भी जंग लड़नी है, और मैं समझता हूँ उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बड़ी जंग हमने सोशल मीडिया के साथ साथ अपने नौजवानों को गुमराह होने से बचाने के लिए लड़नी है, जिनके ज़हनों में जहर भरा जाता है, जिनके इंडिया प्रोपेगेंडा करता है मुख्तलिफ किस्म का। ठीक है, तादाद में ज्यादा है, ठीक है, 1.25 अरब की आबादी है, ठीक है, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है, काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन वो जब इसके ज़रिए हमारे नौजवानों को गलत इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, गलत हिस्ट्री फीड करते हैं, उसका क्या करें? बिल्कुल नजम साहब, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आपका, बट मैं समझता हूँ कि अगर आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें, नोट कि इससे पहले क्या होता रहा, मेरा ख्याल है नो दिस इज द टाइम कि हम वो 6 सितंबर का जो जज्बा आप हर जगह देखते थे, आप सियालकोट के लोगों की बात करें, चिविंडा के लोगों की, लाहौर के लोगों की बात करें, लाहौर तो मैं कहता हूँ लाहौर ने तो कमाल कर दिया। आप इमेजिन करें वो ट्रूप्स जो कि लाहौर से गुजर के फिर आगे बॉर्डर पे जा रहे थे, सारा लाहौर, यानी आप इंडियन एयरक्राफ्ट हवा में हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, स्टैफिंग कर रहे हैं, पूरा लाहौर या छतों पे खड़ा है या रोड्स के ऊपर खड़ा है, उनके पास फ्रूट्स, उनके पास खाने पीने की चीजें, बिस्किट, दूध, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। और उनकी गाड़ियां, ऐसे नारे लगाए जाते थे जैसे बकायदा कोई वो पायलट जो सुन रहा है और वो हो रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एंड दैट वाज द नेशन में जिसकी अक्सर आपसे मैं बात करता हूँ कि कौमें वो होती है, और याद रखिएगा, कभी किसी मुल्क की भी एग्जाम्पल ले लें,
कोई मुल्क जंग नहीं जीत सकता, कोई फौज जंग नहीं जीत सकती जबकि पूरी कौम उसकी पुश्त के ऊपर खड़ी नहीं होती। भाई बिकॉज ये कोई 5-6 लाख लोगों की जंग तो है नहीं ना, पूरे कौम की जंग एक लिहाज से होती है। वो जो जज्बा होता है वो आप अपनी कौम से लेते हैं, वो जो स्ट्रेंथ होती है वो आप अपनी कौम से लेते हैं। प्रोफेशनलिज्म तो है आपके पास, वेपन्स तो हैं आपके पास, आपको एक्सपर्टी भी है उसके ऊपर, आप कॉन्फिडेंस भी हैं, लेकिन वो जो इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है आपको पता चलता है। आपको ये भी मालूम है कि जिस तरह करण साहब ने भी कहा, हजारों लोग हमारे शहीद हो गए, ऑफिसर्स, जेएसयू, सोल्जर्स की अगर आप बात करते हैं, एक्चुअली वो अगर चाहते तो मे भी अपने आप को बचा भी सकते थे। उन्होंने तो अपना सीना खोल के सामने रख दिया, उन्होंने कहा जी दिस इज व्हाट इट इज। लहू तो सबका एक जैसा होता है, गर्म लहू है, गर्म लहू उनके जिस्मों से निकलता था, इसी जमीन को सैराब करता था। आज हम बैठे हुए सारे के सारे बिकॉज उन शहीदों की वजह से, उनके खून देने की वजह से, उनके जज्बों की वजह से, बिकॉज उन्होंने अपना आज जिस पे वो जिंदा रहना था वो उन्होंने हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। We are sitting here because of them, we are talking here because of them. Why? Because they were the one. उन्होंने जो अपनी जिंदगी का प्रीशियस तरीन जो मैं समझता हूँ कि जिंदगी होती है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, बहुत सारे लोग कर साहब, बहुत सारे लोग आज सवालिया निशान लगाते हैं, कहते हैं क्या पाकिस्तान बनने से क्या हासिल हो गया। आप देखें इंडिया का जीडीपी देख लें, आप देख लें ग्रोथ रेट देख लें। मैं उन्हें आगे से करण साहब, मैं उन्हें कहता हूं कि तुम जरूर देखो, इंडिया का जीडीपी भी देखो, अल्लाह करे हमारा जीडीपी भी बहाल हो, हमारा ग्रोथ रेट भी दोबारा आगे बढ़े, सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन इसके साथ साथ मैं करण साहब की बात से उसको लेके चल रहा हूं कि आज अगर हमारी मसाजिद से अजानों की आवाज आती है, ये जो दरूद सलाम पढ़े जाते हैं, ये जो सलाम पेश किए जाते हैं, ये जो हम बड़े फख्र के साथ खुद को मुसलमान कहते हैं, ये सब कुछ शहीदों के लहू की वजह से, इन्हीं की वजह से देखा सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा जो बेसिकली इख्तिलाफ किया हमारा इंडिया से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें इंडिया में आज मौजूदा टाइम में, इस दौर में, इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता है। आप इस दौर में मुसलमानों की हालत, आज के दिन आप इंडिया में मुसलमानों की हालत है। आप देखें जब 1945-46 का इलेक्शन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग ने 100% सीटें, सेंट्रल असेंबली में 30 सीट्स वर रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स, 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती। 1585 सीट्स थी, सूबों में मुसलमानों के लिए 492 रिजर्व थी, 429 मुस्लिम लीग ने जीती। इवन जो इंडिया में आजकल आप ये देखें कि मुसलमानों में जो पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश थी, जो आजकल का उड़ीसा है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, असम, आप देखें 100% मुस्लिम रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। जब तक मुसलमान को तकलीफ होगी दुनिया में, आप देखें मुस्लिम उम्मा जो हमारा जो यूनिटी का एक सिंबल है वो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कश्मीर में हमारा कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। क्यों? कश्मीर आप देखें जब ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जब पाकिस्तान इंडिया आपस में जो है ये आज़ादी मिली पाकिस्तान को, तो उनको कहा जी कि ठीक है आप मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज पाकिस्तान में और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं आपकी मर्जी है। उसमें कश्मीर आप देखें जूनागढ़ में, जो जूनागढ़ का जो महाराजा था, जो इंचार्ज था, वो पाकिस्तान, वो मुसलमान था। उसमें जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा हिंदू थी। इसी तरह हैदराबाद ने ऐलान किया जी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जूनागढ़ ने कहा पाकिस्तान के साथ। अभी जूनागढ़ में जो दीवान थे वो सर शाहनवाज भुट्टो थे, जो जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद। कश्मीर में राजा हिंदू था लेकिन कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान थी। अभी इस तस्वाब राय जो है वो उन्होंने कहा जी पहले हमला किया जूनागढ़ पे, उसको पहले कब्जा किया उसके ऊपर जबरदस्ती, और फिर बाद में कहा जब यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेरेंस हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये आपने जो जबरदस्ती वाला काम किया ये गलत किया है, उसके बाद रेफरेंडम कराया। वहां पे पॉपुलेशन हिंदू थी, उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वी एक्सेप्टेड। लेकिन ये काम कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में ये वादा किया गया था, ये प्रॉमिस किया गया था कि हम रेफरेंडम कराएंगे। आज तक कश्मीर में रेफरेंडम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों को इस तरह उनका कत्लो गारत होगी, उनके साथ जुल्म सितम ये जारी रखेंगे, पाकिस्तान किसी भी सूरत में
کشمیر سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتا, کشمیر سے اپنے آپ کو جدا نہیں رکھ سکتا. یعنی کہ بھارت جو یہ کہتا ہے نا کہ جی کشمیر کی بنیاد کے اوپر آپ نے جنگ لڑی اور آپ نے کشمیر میں یہ کیا, تو بھائی ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے, ہم بلکہ حق نہیں ہمارا فرض ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کی آواز بنے. آپ دیکھیں پیلٹ گنوں کے ساتھ, آپ ابھی محرم الحرام کے جلوسوں کے ساتھ جو انڈیا نے کیا, میں بار بار کنسرٹ یہی کہتا ہوں دوستوں سے کہ بھائی تم دیکھو تو صحیح کون کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فیصلہ کون کہتا ہے کہ غلط تھا؟ تمہیں کس طرح لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ انڈیا میں حالت تو دیکھو, آج بھی لاہور کے سیالکوٹ میں وہی حالت ہوتی جو دلی میں ہے, جو ممبئی میں. ابھی دلی میں کیا کیا انہوں نے؟ تباہی کر دی سر, انہوں نے تباہی کر دی. اور لوگ اپنی نوجوان نسل کو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت ہے, ان کے جوش اور جذبے کو. سائرہ کی طرف میں جاؤں گا. سائرہ, اس وقت پاکستان کے لیے ہم سب نے اپنی اپنی جگہ پہ رول پلے کرنا ہے. ہماری پاک فوج تو موجود ہے, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کے ایک ملی نغمے سے, آپ کے ایک ترانے سے ہو سکتا ہے کسی کا دل بدل جائے, کسی کا جوش جو ہے دبا ہوا جوش واپس جائے. تھوڑا سا سنائیں گی کچھ اور, کوئی اور ترانہ؟ جی, اے وطن کے سجیلے جوانوں وہ بھی ہے. ویسے اے راہ حق کے شہیدوں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, وہ اگر آپ کہیں تو جو آپ کا دل چاہے. جی. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے, میرے نغمے تمہارے لیے, اے وطن کے سجیلے جوانوں, تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے, اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر, ساتھ جائے گی پرواز میری. قوم کے اجرے پاسبانوں, میرے نغمے تمہارے لیے, میرے نغمے تمہارے لیے, اے وطن کے سجیلے